Okay, hi, hello everyone. Welcome back to Class Side. Welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will discuss very important short question, chemical equilibrium, chapter number 1. At the previous lecture, we have discussed different MCQs of the chapter number 1, named is chemical equilibrium. Now today we will discuss question number 2, very important short question about chemical equilibrium, chapter number 1. So आप सब लोगों से पहले इल्तिजा है कि 10th केमिस्ट्री बुक आज उठाना है और इसके अलावा मैंने जो पहला चैप्टर आप लोगों को बड़ा डिटेल में समझाया था, तो एक काम ये भी करें कि वो चैप्टर जो मैंने समझाया था वो ज़रूर देखें, क्योंकि इसके बगैर ये शार्ट क्वेश्चन मुश्किल है कि हो जाए। तो आज हम डिस्कस करेंगे 18 पेज पे जो शार्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, उन्हीं को। बात समझ आ रही है ना? ओके, जो हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि जी व्हाट आर इरिवर्सिबल रिएक्शन, गिव अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैम। कहता है इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, इसकी चंद कैरेक्टरिस्टिक्स बता दे। ओके, सो मुझे कौन बताएगा आप लोगों में से, कमेंट्स पे ज़रूर बताएं कि इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। यू नो दोज रिएक्शन which proceed in only one direction, and such a reaction is also called a complete reaction. Why? Because irreversible reaction which proceed in one direction, they always goes to completion. That's why they are called complete reaction also. And what are the few characteristics? Irreversible reaction, first character, they proceed in one directions. Irreversible reaction, second character, product never can't recombine, product दोबारा नहीं मिलता इस reactions में। तीसरा, they are represented by a single full headed arrow. And number 4, irreversible reaction always goes to completion, so that's why they are called complete reaction. And 5, example, calcium carbonate when decomposed to calcium oxide plus carbon dioxide, and carbon dioxide escape continuously because the system is open vessel. So that is the example. So these are the characteristics of irreversible reaction. Question number 2, define chemical equilibrium state. So you know chemical equilibrium state means the state of a reversible reaction where rate of forward reaction becomes equal to a rate of a backward reaction. And it is such a state of a reversible reaction which is called a stable state, because in such a state, in such a point, the reversible reaction is very stable. Are very stable. And remember, chemical equilibrium state is always dynamic. It's not static. Why? Because reaction can't stop, reaction always continue, the rate of forward become equal to rate of backward. Question number 3, what are the characteristics of a reversible reaction? They proceed in both directions, forward as well as backward. They are called incomplete reaction. Why? Because they never goes to completion. That's why they call incomplete reaction. And number next, reversible reaction में product can be recombined. And number 4, equilibrium state can be established and reversible reaction. But in irreversible, equilibrium state is not established, but reversible equilibrium state is established. And a reversible reaction, product can be recombined, and they are represented by a pair of opposite half-headed arrow. How is dynamic equilibrium established? So question number 4, how is dynamic equilibrium established?
कहता है डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है, कैसे इस्टेब्लिश होता है। देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन में जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाए तो पहले ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन चलता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर वही प्रोडक्ट जो है रिएक्शन में भी कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, दैट इज अ रिवर्स रिएक्शन। फिर धीरे धीरे एक ऐसा भी पॉइंट इस्टेब्लिश हो जाता है जहाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, कि जितने टाइम में मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते हैं उतनी ही टाइम में मॉलिक्यूल प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आते हैं, सो द रेट बिकम्स इक्वल एंड सच अ पॉइंट of a reversible reaction is equilibrium point. So equilibrium is established. Question number 5. Why at equilibrium state reaction does not stop? Because chemical equilibrium is always dynamic, where rate of forward become equal to rate of backward. So molecule cannot stop, molecule move from reactant to product and product to reactant, but in equal rates, because chemical equilibrium is always dynamic. Question number next 6. Why is equilibrium state attainable from either way? देखिए ना, ज़रूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम जो है हमेशा लेफ्ट टू राइट हासिल होगा या राइट टू लेफ्ट हासिल होगा। राइट टू लेफ्ट भी हासिल हो सकता है और लेफ्ट टू राइट भी हासिल हो सकता है। सो वन ऑफ द करेक्टर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम, कहते कैन बी obtained from either way, from left to right and from right to left. Next question. What are the relationship between actual mass and rate of reaction? That is according to law of mass action. That the rate of reaction is directly proportional to actual mass. So the relation between actual mass and rate of reaction is directly proportionality. Question number 8. Derive equilibrium constant expression for the synthesis of ammonia from nitrogen and hydrogen. कहता है कि जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाए, लाइक नाइट्रोजन gas and 3 molecule of hydrogen gas combine together and they produce 2 molecule of ammonia. कहते हैं इसका Kc expression कर दे. So Kc expression you know that is a product concentration divided by reactant concentration and coefficient raised to the power. So the product is NH3, so that concentration and coefficient raised to the power, and the reactant is N2 and H2 and coefficient raised to the power. So the Kc expression for the synthesis of ammonia from nitrogen and hydrogen is that. Okay. Question number 9. Write the equilibrium constant expression for the following reaction. Yeah. इस चीज़ को ज़रा जल्दी नोट कर दें. The Kc expression from ammonia from nitrogen and hydrogen is that. बिठा दूँ. Okay. Now other two reaction, and for each reaction, what is the equilibrium constant expression? The one reaction is when H2 gas combined to I2 gas and they produce 2HI. 2HI. So what is the Kc expression for that? Remember always Kc expression is the product concentration divided by reactant concentration. If there is some coefficient, so rise to the power. So the product of that is Hi concentration coefficient raised to the power, and the reactant is H2 and I2. So the Kc expression for that reaction is. Now another reaction, when carbon monoxide gas combined with hydrogen gas, so they produce CH4 gas, CH4 gas plus water gas. So what is the Kc expression for that reaction? Okay, so what is the Kc expression? Always product divided by reactant. So the product now is CH4 concentration and H2O concentration divided by CO concentration and H2 concentration Q. So that is the Kc expression for that reaction. And that is the Kc expression for the first reaction.
So that is all about short question number 9. What are the Kc constant expression for the reaction? So far that. बात समझ आ रही है ना सबको? Okay. Question number 10, very important on exam point of view. How direction of a reaction can be predicted? कहता है कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन मालूम कैसे किया जाता है. सो मैंने आपको बताया तो वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन. उसी से किस तरह, अब देखिए, you know there are two types of concentration. One is during equilibrium point, another is during non-equilibrium point. The equilibrium point concentration is always Kc, but non, that is Qc. F Qc is greater than Kc. किस तरह डायरेक्शन प्रिडिक्ट करेंगे, जरा क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, उसी का जवाब सुने. अगर Qc Kc से ज्यादा हो तो Qc को कम करना चाहिए कि Kc के बराबर हो जाए. Qc कम कैसे होता है, प्रोडक्ट कम कर दे, रिएक्टेंट ज़्यादा कर दे. जब प्रोडक्ट कम करना है, रिएक्टेंट ज़्यादा करना है, तो रिएक्टेंट की तरफ जाना है. सो दैट इज रिवर्स डायरेक्शन. If Qc greater than Kc, the reaction will be reverse. If Qc smaller than Kc, the direction will be forward. If the Qc equal to Kc, so equilibrium, so both directions simultaneously, forward as well as backward. So one of the most important short question on exam point of view, that how the direction of a reaction can be predicted. So the answer is, if Qc greater than Kc, so they will move reverse direction. If Qc smaller than Kc, so they will move forward direction. If it is equal, so they will move on both direction, forward as well as backward direction. Short question number 11. How can you know that a reaction has achieved an equilibrium state? कहता है आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि अब इक्विलिब्रियम स्टेट हासिल हो गया? कैसे पता चलेगा कि इक्विलिब्रियम स्टेट हासिल हो गया? वेरी सिंपल. कैसे पता चलेगा इक्विलिब्रियम स्टेट हासिल हो गया? वेरी सिंपल. देखिए, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस में मज़ीद चेंज नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम पॉइंट हासिल हो गया. क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट में होता क्या है कि जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है उतना ही रेट ऑफ बैकवर्ड होता है. तो सारी बात है, जितने मालिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएंगे उतने ही मालिक्यूल प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आएंगे. तो मज़ीद बस कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आएगी. सो द कंसंट्रेशन बिकम्स कांस्टेंट. जब दोनों साइड का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए, मज़ीद चेंज ना आए, तो समझे कि इक्विलिब्रियम स्टेट हासिल हो गया. क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट में रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड. सो इक्विलिब्रियम जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बिकम्स कांस्टेंट, सो इट्स मीन्स इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड. अगर कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब अभी इक्विलिब्रियम हासिल नहीं हुआ है. Question number 12. What are the characteristics of a reaction that establish equilibrium state once? कहते वो कौन सा रिएक्शन है जिसमें इक्विलिब्रियम स्टेट ही हासिल होता है? The reaction is always reversible. कौन सा रिएक्शन है? वो रिएक्शन रिवर्सिबल है. उसके क्या कैरेक्टर होने चाहिए? जो रिवर्सिबल के हैं वही कैरेक्टर्स होने चाहिए. प्रोडक्ट दोबारा रिकम्बाइंड होगा. Never goes to complete. Proceed in both direction. Represented by a pair of opposite half-headed arrow. And also and so. So reaction रिवर्सिबल होना चाहिए और इसके करेक्टर ये होने चाहिए कि वो बोथ डायरेक्शन में प्रोसीड करता होगा. नेवर गोज टू कंप्लीशन. प्रोडक्ट कैन बी रिकम्बाइंड. इक्विलिब्रियम उसमें एस्टैब्लिश होगा. क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट. If the reaction equation of the reaction is more than Kc, then what will be the direction? Very simple. कहते हैं कि अगर Qc greater than Kc हो तो what will be the direction? The direction will be reverse. So ये जो पहला है ये आपके 13 क्वेश्चंस का आंसर है. आंसर क्वेश्चन नंबर 13 शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर है कि अगर Qc greater than Kc हो तो रिएक्शन रिवर्स ही होगा, रिवर्स ही जाएगा. And question number last. An industry was established based upon a reversible reaction. कहता है कि इंडस्ट्री है वो एस्टेब्लिश हुई है रिवर्सिबल रिएक्शन के बेस पे.
एट फेल्ड टू अचीव प्रोडक्ट ऑन कमर्शियल लेवल। कहते हैं कमर्शियल लेवल में वो प्रोडक्ट, कमर्शियल लेवल का मतलब है कि ज़्यादा मिकदार में कहते हैं वो प्रोडक्ट हासिल नहीं कर सकता, ज़्यादा मिकदार में वो प्रोडक्ट हासिल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल नेवर गोज टू कंप्लीशन, क्योंकि रिएक्टर से जब प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाए तो थोड़ी देर बाद प्रोडक्ट से वापस रिएक्शन आ जाता है। तो हमने तो प्रोडक्ट बनाना है, ज़्यादा बनाना है, कमर्शियल लेवल पे बनाना है। कमर्शियल कैसे बनाएंगे? प्रोडक्ट बनता है वापस आता है। कैन यू पॉइंट आउट द बेसिक रीज़न इट्स फेल्योर बीइंग अ केमिस्ट? कहता है क्या आप इस रीज़न को पॉइंट कर सकते हैं ऐसा क्यों है? मैंने बता दिया। ज़रा सवाल को समझे। सवाल कहता है कि इंडस्ट्री में जो रिएक्शन होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं और उसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो कमर्शियल लेवल्स पे नहीं बनता, मतलब ज़्यादा मिकदार में वो प्रोडक्ट नहीं बनाता रिवर्सिबल रिएक्शन। बीइंग अ केमिस्ट, इसका क्या फेल्योर है? आपको बता रहा हूँ, इसका फेल्योर यही है क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है उसमें इक्विलिब्रियम आ जाता है और इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाता है। कहने का मेरा मतलब है कि रिवर्सिबल प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन होता है। रिएक्शन से इनिशियली प्रोडक्ट बनता है लेकिन धीरे धीरे उस प्रोडक्ट से वापस रिएक्शन बनना शुरू हो जाता है। अब मुझे बताएं, हमने तो प्रोडक्ट ही जस्ट बनाना है ज़्यादा मिकदार में, लेकिन उस प्रोडक्ट से जब वापस रिएक्शन वापस आ जाता है तो क्या प्रोडक्ट ज़्यादा मिकदार में हासिल हो जाएगा? नहीं। क्यों? रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या है, क्या मेन, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ वे। रिएक्शन से जब प्रोडक्ट बन जाए तो उस प्रोडक्ट से वापस रिएक्शन भी बनना शुरू हो जाता है, इसलिए प्रोडक्ट ज़्यादा मिकदार में कभी हासिल नहीं होता क्योंकि वापस रिएक्शन में आ रहा है। तो ये इसका बेसिक फेल्योर है। बात समझ आ रही है ना? हाँ, अगर इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो आप जो ही प्रोडक्ट से वापस रिएक्शन बनना शुरू हो जाए तो आप ऐसा करें कि वो प्रोडक्ट वहाँ से निकालते जाए। कहने का मेरा मतलब है कि आप रिएक्शन जो रिवर्सिबल है उसको इरिवर्सिबल बनाए, मीन्स के जो रिएक्शन से प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट वहाँ ना हो, वो प्रोडक्ट वहाँ से निकालते जाए। वेसल कंटेनर ओपन रखे तो प्रोडक्ट निकलता जाएगा अगर गैसेस है, या वैसे लिक्विड सॉलिड बन रहा है आप निकालते जाए। जब आप निकालेंगे तो कभी भी प्रोडक्ट वापस रिएक्शन में नहीं आएगा, सो एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो आपको कमर्शियल लेवल बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोडक्ट हासिल शुरू हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना सबको? और इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है, मैंने बड़ी डिटेल में बयान किए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपने खुद करने हैं, वो लेक्चर सुने बस आपका हो जाएगा। पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन है कि रिवर्सिबल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एंड ग्राफ समझा दे, तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ग्राफ मैंने बहुत डिटेल में समझाया था, आप वो वीडियो ज़रूर देखें। सेकेंड क्वेश्चन है कि कैरेक्टरिस्टिक्स डायनामिक इक्विलिब्रियम के क्या है, मैंने बहुत डिटेल में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम समझाए थे, वो वीडियो आप ज़रूर देखें। तीसरा क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है और इसकी डेरिवेशन कर दे, तो लॉ ऑफ मास एक्शन और इसकी डेरिवेशन में एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप ज़रूर देखिए वो। और क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दो इम्पोर्टेंस मैंने आपको बताए थे अलग अलग वीडियो लेक्चर्स में, एक में डायरेक्शन बताया था और एक में एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बताया था। दोनों वीडियो ज़रूर देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर लास्ट भी हो जाएगा। बात समझ आ गई ना सबको? और लास्ट न्यूमेरिकल है, बहुत आसान है, ये आपने खुद करने हैं। केसी किस चीज़ के बराबर होता है? प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। न्यूमेरिकल में क्या है? आपको प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, कहता है ये मालूम कर ले। तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पुट करके कैलकुलेटर से कैलकुलेटर निकाल के हल कर दे, आपको केसी आ जाएगा। या ऐसा होगा कि केसी इज इक्वल टू दैट एंड दैट, इसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दिया होगा, रिएक्टेंट की केसी का कंसंट्रेशन दिया होगा, कहता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन फाइंड कर ले, तो इस इक्वेशन को रीअरेंज कर ले। सो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू केसी डिवाइडेड बाय तो रिएक्शन उस साइड पे कर दे, सो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। So product concentration divided by Kc, so that is reaction concentration। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि अगर प्रोडक्ट रिएक्शन की कंसंट्रेशन दिया है, कहता है Kc मालूम कर ले, कैलकुलेटर से कर दे। अगर उन्होंने प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और Kc वैल्यू दिया है, कहता है रिएक्शन कंसंट्रेशन मालूम कर दे, रीअरेंज कर दे। अगर उन्होंने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का कहा है कि ये मालूम करना है, ये दोनों दी हैं, तो आप इसको रीअरेंज कर ले। तो इस इक्वेशन से आप चारों न्यूमेरिकल आराम से हल कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट
चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज इन डिटेल। ज़रूर वीडियो देखें, शेयर कर ले, कमेंट्स कर ले। हमारा पहला चैप्टर हो गया केमिकल इक्विलिब्रियम, उसका पूरा एक्सरसाइज भी हमने कर दिया विद एमसीक्यूज। नेक्स्ट जो है हम चैप्टर नंबर 2 पे जाएंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट। हमारे साथ रहिए एसिड बेस एंड सॉल्ट में भी, और इसी तरह चैप्टर नंबर 3, 4 एंड सो कंटिन्यू रखेंगे जब तक हम ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं। हमारे साथ रहिए, वीडियो को ज़रूर शेयर करें, कमेंट्स कर लें। और एक रिक्वेस्ट है कि मेरा अपना एक चैनल है जाहिद केमिस्ट CCC के नाम पे, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, कमेंट्स कर लें कि मैं इसी तरह लेक्चर कंटिन्यू कर दूं YouTube चैनल्स पे और आप लोगों को फ़ायदा हो। सो दैट इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1। थैंक यू वेरी मच।